If we are having magnetic radiation, and second is geographic radiation. The angle between magnetic radiation and geographic radiation is net magnetic field will lie in the magnetic radiation, and the direction of net magnetic field with horizontal is called delta. Then horizontal component of magnetic field will be B cos delta, and the field will be sin delta, B sin delta. And इन दोनों का रिजल्टेंट will be B है, which is this formula. For tan delta का value that is perpendicular over base, तो perpendicular का value B sin delta है और base का value B cos delta है. तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan delta है. This is a tan delta. Till here magnetism की इन formulas में किसी को कोई डाउट नहीं? Write down one question. Calculate the Earth's magnetic field at a place where angle of drift is 60 degrees. Where angle of drift is 60 degrees. And horizontal component of magnetic field is 0.3 Gauss. Horizontal component of magnetic field is 0.3 Gauss. यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन के अंदर it is very clearly mentioned that is the value of delta is और B horizontal आपको given that is 0.3 Gauss and you have to find B net. B net find out करने के लिए आपको पता है that is BH is equals to B cos of आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है. cos 60 आपको पता है और pH आपको गिवन है. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p और p का वैल्यू कितना है यहाँ पर that is equal to 0.6 Gauss. क्लियर है? राइट इट डाउन. नेक्स्ट देखो बेटा, आज सेकंड लास्ट चैप्टर और लास्ट कॉस की वैल्यू का डीएस की बात डीएस की वैल्यू 0.3 यहाँ तक की राइट डाउन वन नोट बनाओ. Consider any two vertical planes. Consider any two vertical planes normal to each other
normal to each other such that delta 1 and delta 2 are angle of dip in these planes then the real angle of dip is given by बेटा इसमें ये क्या कह रहे हैं बेसिकली अब हमने एंगल ऑफ डिप को कैसे डिफाइन किया था हमने बोला था कि हम अपनी मैग्नेट को रखेंगे ठीक है ऐसे वर्टिकली रखेंगे ऐसे करके अब लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये लीडर एंगल बना रही है दैट इज डेल्टा 1 ये एग्जैक्टली एंगल ऑफ डिप क्यों नहीं है अब हमारे को थोड़ी ना पता है कि ये मैग्नेटिक पीरियड है या नहीं क्या होगा मैग्नेटिक पीरियड ऐसे करते हैं तो एंगल ऑफ डिप ट्रू एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करने का क्या मेथड है वो क्या कहते हैं कि पहले आप क्या करो इसको कंपास नीडल को ऐसे करके रख लो अब जो आपके पास एंगल ऑफ डिप आएगा दैट इज डेल्टा 1 फिर इस कंपास नीडल को इस पोजीशन से 90 डिग्री के एंगल पर रखो ऐसे करके नाउ अब इस केस में जो एंगल ऑफ डिप आएगा दैट इज डेल्टा 2 and if you will do cos square delta 1 plus cos square delta 2 you will get cos square delta और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको डेल्टा का वैल्यू आएगा क्लियर राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन angle of dip at a place is angle of dip at a place is 60 degree angle of dip at a place is 60 degree vertical component of magnetic field at that point is 0.2 Gauss 0.2 Gauss. Calculate the total magnetic field at that point.
सॉल्व करके मेरे को जब अभी आपको यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है और डेल्टा का वैल्यू गिवन है तो आपको पता है दैट इज b sin delta is equals to वर्टिकल कंपोनेंट, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया। Write down new heading, that is neutral points. Neutral points. Write down the points where net magnetic field due to bar magnet. The point where net magnetic field due to bar magnet and earth is zero, bar magnet and earth is zero are called neutral points. Are called neutral points. फर्स्ट लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो बेटा, किसी हेडिंग के अंदर दो केसेस बनते हैं, उसमें केस 1 बनाओ। लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स when north pole of a bar magnet, when north pole of a bar magnet points towards the north of the earth, points towards the north of the earth. ऊपर नॉर्थ में हमारे पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट कैसे केस बनते हैं? क्वेश्चन में गिवन नॉर्थ पोल of a bar magnet is in the direction of, this is north pole and this is south pole. अच्छा, अर्थ के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ के कारण से मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां पर जाती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे करके जाती है, नीचे से ऊपर। दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक। ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाया? अर्थ मैग्नेटिक। और यहाँ पर इस मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी वो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पर एंटर करेंगे। तो अब सबसे पहले यहां पर अब दो चीजों की मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ग्रीन कलर से किसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे? अर्थ से। और ब्लू कलर से किसकी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं? बार में। और इसलिए अंदर भी स्ट्रेट 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 डाल
हमारे को एक बात पता है टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं साउथ पोल के नीचे देखूंगा, साउथ पोल के नीचे ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर को जा रही है, और अर्थ के कारण में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऊपर को जा रही है। तो क्या कभी यहाँ पर पॉइंट आ सकता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर। सिमिलर इज द केस ऑन टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से ऊपर को जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन कलर की भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऊपर को होगी, तो नेट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। यही अगर मैं यहाँ पर बात देखूंगा, देखो ये नॉर्थ पोल से ऐसे घूम के जा रही है, तो इसके किसके बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये बात समझ सकते हैं? श्योर? तो अब अगर यहाँ पर अर्थ के कारण ऊपर को है और मैग्नेट के कारण नीचे है, देखो मैग्नेट के अगर मैं मैग्नेट बहुत ज्यादा पास में हूँ तो मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा नीचे को होगी, और अगर मैं बहुत ज्यादा दूर चले जाऊंगा तो अर्थ के कारण ऊपर को होगी और मैग्नेट के कारण बहुत जीरो एंड करेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होगी, और बीच में कोई यहाँ पर कोई बीच में पॉइंट होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सिमिलरली इस मैग्नेट के लेफ्ट साइड पर भी और इस मैग्नेट के इतना ही डिस्टेंस राइट साइड पर। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। And if I come to the second case के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अर्थ का तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही जाना है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। बट अब हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को कैसे रखा, टुवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ। नॉर्थ पोल को यहाँ पर रखा और साउथ पोल को यहाँ पर। केस 2 मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, नॉर्थ से नीचे साउथ पर एंटर करेगा। और मैं यहाँ पर देखूंगा बेटा, तो यहाँ पर मैग्नेट के इसी लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और अर्थ के कारण में ऊपर को है, तो कभी भी यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता, ना यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आ सकता। और अगर मैं यहाँ पर देखूंगा मैग्नेट के बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नीचे को, और अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऊपर। अगर ज्यादा नीचे चले जाऊंगा तो अर्थ के कारण ऊपर को आएगी, ज्यादा पास में मैग्नेटिक पर चले जाऊंगा तो ज्यादा नीचे को आएगी। तो बीच में कहीं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। सिमिलरली एक यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर भी आप देख लो नीचे को है, तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनमें फर्क क्या है। अगर मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट और राइट आएंगे मैग्नेटिक, और अगर साउथ पोल टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो मैग्नेट के ऊपर और नीचे न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे। क्लियर बेटा सभी, इस चीज को मेरे ड्रॉ कर क्लियर से ड्रॉ कर न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड की है जीरो। इस जगह से अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को लेके जाऊंगा, अगर मैं उधर जाकर मैग्नेटिक नीडल को लेके जाऊंगा, उसको जितने रखाऊंगा उतनी देर लगेगी। ठीक है सर।
हाँ 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 उसके बाद केस में लिख लो बेटा, केस में लिख लो साउथ पोल। हाँ ओके, राइट डाउन एक रूट बना लो तो लिखो सेकंड केस लिखो। सेकंड केस में जो बेटा मैं साउथ पोल इज फिक्स्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। बेटा इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन बोलेंगे, एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलेंगे, एक्सियल लाइन।
तो एक नोट बनाओ और लिखो when north pole of a bar magnet when north pole of a bar magnet points in geographic north then neutral points lie on equatorial line of bar magnet and if south pole of a bar magnet is towards geographic north, then neutral points lie on axial line याद रखिए अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट कितने एंगल से टर्न किए यहाँ पर थे और यहाँ पर आ गए कितने एंगल पर टर्न किए 90 डिग्री और मैंने मैग्नेट को कितने एंगल पर टर्न किया 180 डिग्री ये बात समझ समझा आई एम अगेन रिपीटिंग मैग्नेट ऐसे पड़ी थी और इसको गोल घुमा दिया ऐसे कर दिया कितने एंगल से गोल घूमी 180 ऐसे पड़ी थी घूम गई ऐसे हो गई और न्यूट्रल पॉइंट यहां पर थे और घूम के ऐसे आ गए फिर तो राइट डाउन वन मोर नोट न्यूट्रल पॉइंट्स turn through an angle of 90 degree neutral points turn through an angle of 90 degree when bar magnet is turned through an angle of 180 degree through an angle of 180 degree यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल क्लियर है अब बेटा इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक इज सम टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एंड सेकंड इज मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक अब एक नया हेडिंग डाल दो दैट इज वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म various terms related to magnetism first लिखो बेटा magnetic flux इसमें लिखो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सबको क्लियर है क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है v डॉट ds यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट नाउ it is defined as the number of magnetic field lines passing through the surface passing through the surface and it is denoted by phi. It
इज डिनोटेड बाय। अच्छा बेटा, हमने पहले ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था सर्कुलर में, वो था E डॉट ds। V डॉट ds मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है? दैट इज B वेक्टर डॉट A वेक्टर, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दैट इज B A cos theta, where theta is the angle between area vector and area vector and magnetic. तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? When will be the maximum flux is over there? हाँ, जब एरिया वेक्टर, देखो लेट्स ये मेरा एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रही है क्रॉस करके, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेक्ट करके जाएंगे जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा? एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू E A। और फ्लक्स मिनिमम कब आएगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू, इस चीज को बेटा नोट करो। यहाँ से क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, find out the dimensions of magnetic flux. Find out the dimensions of magnetic flux. करो। हाँ जी बेटा, अब देखो सभी एवरीवन, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसके डायमेंशन भी किसके इक्वल होंगे? दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशंस ऑफ एरिया। अब तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन की तरह। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, तो मैं आपको पता है फोर्स के फॉर्मूले के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो यूज होता है दैट इज इक्वल्स टू क्यू बी। तो b का डायमेंशन किसके इक्वल आएगा? दैट इज f अपॉन क्यू बी, और ये वेलोसिटी है, ये याद रखो। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन आप फाइंड आउट कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन कितने आएंगे? दैट इज mlt माइनस 2 और चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू AD है ना, वेरी गुड, A into B। और वेलोसिटी के डायमेंशन कितने आएंगे? LT माइनस 1 मीटर पर सेकंड।
यहाँ पे 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में एक 3 से एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस L से ये कैंसिल हो। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन क्या आ गए? m3 - 2a m m l - 2 l0 t - 2 t - 2 a - 1 a - 2। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आपको फ्लक्स के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं तो फ्लक्स की स्पीड को होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, दैट इज m t - 2 a - 2, और एरिया के डायमेंशंस क्या हैं? l, ये किसके पर आ जाएगा? m l² t - 2 a - 2, ठीक है राइट। अच्छा, आपको गॉस और टेस्ला के बीच में रिलेशन पता है? लैटिस फॉर्म क्या? तो ये याद रखना बेटा, गॉस और टेस्ला के बीच में रिलेशन, दैट इज 1 गॉस is equal to 10 to the power -4 Tesla. Gauss and Tesla both are the units of electric magnetic field. Read on the next definition. Magnetization. Magnetization. magnetization, magnetization or intensity of magnetic field, or intensity of magnetic field. इसमें लिखो बेटा, the degree or extent to which a substance is magnetized when placed in magnetizing field, is called magnetization. Or intensity of magnetization. Or and the degree or extent to which a substance is magnetized when placed in magnetic field. Magnetizing field. Placed in magnetizing field is called magnetization or intensity of magnetization. Or intensity